मेरा नाम प्रदीप अग्रवाल है और मोदी जी से ये दूसरी बार मिलने का मौका मिला इतने पास से। पिछली बार जब यहाँ पर जॉर्डन में आए थे तो उनसे मिले थे और बहुत ही अच्छा लगा। जब आए तो बोलती बंद हो गई, पहले से सोचे रखा था ये बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया क्या बोले। मैं जॉर्डन में पिछले 2 साल से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा मोदी जी से पहली बार फेस टू फेस मिलकर। हमने भारत की जानो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था और पहली बार मोदी जी हमसे मिले और उन्होंने हमसे प्रोत्साहित किया कि ये लोकल जॉर्डन लोगों को भी ये सब पार्टिसिपेट करो, ताकि लोकल लोग भी भारत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें कि भारत किस तरीके से, हमारी हिस्ट्री क्या है और भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। मैं आपकी मित्रता और भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग। I believe that this forum comes at a meaningful moment, offering a platform to expand trade, encourage investment, and build stronger connections between our two nations. Your Excellency, once again, I welcome you to Jordan. I look forward to a productive discussion. मॉडरेशन को बढ़ावा देने के लिए आपके प्रयास क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस दिशा में मिलकर ठोस रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। I believe that this forum comes at a meaningful moment, offering a platform to expand trade, encourage investment, and build stronger connections between our two nations. The Jordan side conveyed their support for India's fight against terrorism and condemned terrorism in all its forms and manifestations. Prime Minister commended the leading efforts by His Majesty on de-radicalization and as a voice of moderation in the Islamic world. They also discussed the significant cooperation between the countries in the fields of fertilizers, especially phosphates. As you are aware, Jordan is an important supplier of fertilizers to India, especially phosphate fertilizers. Companies on both sides are in discussion for further investment in Jordan to meet growing need for phosphatic fertilizers in India. Our Prime Minister also proposed doubling of bilateral trade to $5 billion in a span of 5 years. During the visit, several MOUs and agreements have been finalized between the two sides in the fields of energy, digital technology, water management, culture, and people-to-people connect. The MOU on technical cooperation in the field of new and renewable energy will allow both sides to collaborate in the areas of green hydrogen, grid integration, and capacity building. The MOU on cooperation in the field of water management and development was also finalized. Jordan being a water-scarce country, cooperation in this area becomes very important. The area of cooperation under this MOU includes water-saving agricultural technologies, capacity building, climate adaptation and planning, aquifer management, and rainwater harvesting. The strong cultural relations between the two countries got a further push with the Cultural Exchange Program for the years 2025-29. Both sides also finalized the twinship agreement between the site of Petra and Ellora Caves of Maharashtra. Under this agreement, both sides will collaborate towards promoting and enhancing social relations and cooperate in areas such as tourism and culture. In addition, both the countries also agreed on further collaboration in the field of sharing successful digital solutions by finalizing a letter of intent in the same field.
फ्रेंड्स, भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। एक जमाना था जब गुजरात से पेट्रा के रास्ते यूरोप तक का व्यापार होता था। हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए हम वो लिंक्स फिर से रिवाइव करने होंगे और इसको साकार करने में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। कल ही मैजेस्टी के साथ मेरी बातचीत का सार भी यही था। ज्योग्राफी को अपॉर्चुनिटी में और अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ में कैसे बदला जाए, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। योर मैजेस्टी, आपकी लीडरशिप में जॉर्डन एक ऐसा ब्रिज बना है जो अलग अलग रीजन्स के बीच सहयोग और तालमेल बिठाने में बहुत मदद कर रहा है। कल हमारी मुलाकात में आपने बताया कैसे भारतीय कंपनीज जॉर्डन के मार्ग से यूएसए, कनाडा और अन्य देशों की मार्केट तक पहुंच सकती है। मैं यहां आई भारतीय कंपनियों से इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा। फ्रेंड, आज दुनिया को नए ग्रोथ इंजन चाहिए। दुनिया को एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन की जरूरत है। भारत और जॉर्डन मिलकर दुनिया की इस जरूरत को पूरा करने में बड़ा रोल निभा सकते हैं। मैं आपसी सहयोग के कुछ की सेक्टर्स की चर्चा आपके साथ जरूर करना चाहूंगा। ऐसे सेक्टर जहां विजन, वायबिलिटी और वेलोसिटी ये तीनों मौजूद है। पहला, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी। इसमें भारत का अनुभव जॉर्डन के बहुत काम आ सकता है। भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंक्लूजन और एफिशिएंसी का मॉडल बनाया है। हमारे यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर जैसे फ्रेमवर्क्स आज ग्लोबल बेंचमार्क बन रहे हैं। हिज मैजेस्टी और मैंने इन फ्रेमवर्क्स को जॉर्डन के सिस्टम से जोड़ने पर चर्चा की है। हम दोनों देश फिनटेक, हेल्थटेक, एग्रीटेक ऐसे अनेक सेक्टर्स में अपने स्टार्टअप्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एक शेयर्ड इकोसिस्टम बना सकते हैं जो हम आइडियाज को कैपिटल से और इनोवेशन को स्केल से कनेक्ट कर सकते हैं। कम, लेट अस इन्वेस्ट टुगेदर, इनोवेट टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। योर मैजेस्टी, एक बार फिर आपका, जॉर्डन सरकार का और इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभावों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। शुक्रान, बहुत बहुत धन्यवाद।